Hello students, today we will discuss the paper pattern of class 12th biology. So before 2 months you got the message that there is the change in the syllabus of class 10th, class 9th and class 11th and 12th due to COVID-19. So now CBSE has released the new sample question paper for all the subject for class 12th and for class 10th. So what are the changes now in the question paper of biology class 12th? So in last year there were only 27 questions in the question paper of biology, and the question paper of biology that was different as compared to physics, chemistry and other subjects. But now there is the same pattern in all the subjects. In biology there were 5 MCQ last year, but now the MCQs will not be there. Only the 1 mark question, 2 marks questions, 3 marks, 5 marks and the case based questions will be there in your question paper. So let us discuss what are these changes. So the sample question paper 2020-21 class 12th biology, that is the code 044 theory paper, and this theory paper will be of 70 marks because 30 marks that is of practical. Question paper is divided into 4 parts: section A, section B, section C and section D, and total 33 questions will be there in all the subjects. Firstly, section A. So in section A there are total 14 questions and each question carry 1 mark and 2 case based questions. So now let us discuss what type of questions will be there in section A. So in section A 10 questions are normal question and these are of 1 mark question. We can take the example like, why does endosperm development precede embryo development? That is the first question. How many meiotic divisions are required to produce 76 seeds in guava fruit? That is also of 1 mark. How does pollination takes place in water hyacinth and water lily? Question number 4, name the gland that contribute to the human seminal plasma. So I think you can solve this question also if you have done these chapters. So these 10 questions, these are the normal 1 mark question, but now MCQs are not there. After that the question number 11, that is the reason and assertion type. So last year there was no reason assertion type questions in biology, only 5 simple MCQs was there. But in case of physics and chemistry there were 14 MCQs and there were the you can say different types of questions, maybe in fill in the blanks form, maybe in the reason assertion. So now these reason assertions are added in biology also. So question number 11, that is the reason and assertion, means एक कोई भी स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट का वो रीज़न होगा और फिर आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन होंगे. फर्स्ट ऑप्शन में आएगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, अगर स्टेटमेंट भी और जो उसका रीज़न भी अगर दोनों ट्रू होंगे, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तब फिर आप उसको ए ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे. एंड इफ़ बोथ द असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, तब आप बी ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे. And if assertion is true but reason is false, then C. And if both assertion and reasons are false, तब आप इसको D ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे. तो ये जो रीज़न और असर्शन वाले जो क्वेश्चन हैं
इनको आप सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और रीज़न असर्शन वाले क्वेश्चन पे स्पेशली आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर जो 11 और 12 है, 13, 14 मीन्स 10 तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 ये क्वेश्चन आपके होंगे रीज़न एंड असर्शन टाइप। मीन्स जो CBSE बोर्ड है अब क्या फोकस कर रहा है कि आपको अगर आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो जितना सिलेबस आप पढ़ोगे उसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ोगे, उसको डीपली पढ़ोगे, क्योंकि जो ये रीज़न और असर्शन वाले क्वेश्चन हैं अगर आप किसी टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो नहीं दे पाओगे। आफ्टर दैट जो क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 2 क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, कोई भी जैसे एक स्टैंजा होगा उस स्टैंजा को आपने कंप्लीट पढ़ना है। स्टैंजा को पढ़ने के बाद उसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे, उस स्टैंजा को आपने पढ़ना भी है और समझना भी है। समझने के बाद उस स्टैंजा से कुछ क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं और वो आपके पार्ट्स में आएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स में होंगे। और उसमें भी आपके पास इन क्वेश्चंस में आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर जो 15 और जो 16 क्वेश्चन होगा उसमें जो है आपको क्या करना है, 16 क्वेश्चन में आप जैसे 5 पार्ट दिए होंगे तो कोई भी 4 पार्ट्स आपको, एक पार्ट को आप लीव कर सकते हो, कोई भी 4 पार्ट्स आपको इसमें करने हैं। तो इस तरह से आपको वो पूरा स्टैंजा दिया होगा, स्टैंजा को पढ़ना है। कई बार ऐसा हो सकता है वो स्टैंजा से क्वेश्चन ना मिले आपको, तो उस स्टैंजा को टोटली आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है, फिर उसके बाद आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो ये 11, 12, 13 एंड 14 दीज आर द रीज़न एंड असर्शन टाइप। उसके बाद 15 एंड 16 जो होंगे ये आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन, और पूरा एक कंप्लीट स्टैंजा होगा, उसमें से आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने होंगे। वो क्वेश्चन आपके MCQ की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे ऑप्शन होंगे उनके A, B, C। तो मीन्स इसने MCQ दिए नहीं हैं, बट केस बेस्ड क्वेश्चंस में इन्होंने इसको MCQ की फॉर्म में ही पूछ लिया और रीज़न असर्शन में भी क्वेश्चंस को MCQ की फॉर्म में ही पूछा है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो रीज़न असर्शन की फॉर्म में हो सकते हैं या वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में वो मिल सकते हैं आपको। सो आई थिंक सेक्शन A इज़ क्लियर। सेक्शन A में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल क्वेश्चंस आर, जो आपके इधर आप देख ही रहे हो, टोटल क्वेश्चंस आर 14 और इसमें से जो 2 हैं वो कैसे होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। टोटल 14 क्वेश्चन होंगे, बट 15 एंड 16 आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन सेक्शन A। तो सेक्शन A में हम ये बोल सकते हैं कि टोटल जो क्वेश्चन हो गए वो 16 हैं। 14 क्वेश्चन जो होंगे 10 नॉर्मल होंगे उसमें एंड 4 दैट इज़ द रीज़न एंड असर्शन टाइप। अब उसके बाद जो बात करेंगे हम वो है हमारा सेक्शन B। तो सेक्शन B में टोटल जो क्वेश्चंस हैं, the total question in section B that are 9 question. So section B में questions होंगे 9 and these questions are of 2 marks each. Now section B has 9 question of 2 marks each. Section C 5 question of 3 marks each and section D 3 questions of 5 marks each. जो ये सेक्शन B, C और D है इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इनमें पहले भी आपके ऐसे ही आते थे, बट क्वेश्चन का जो टोटल अमाउंट है, जैसे वहाँ पर क्वेश्चन कम या 12 या 7 आते थे, तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, 5 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच एंड 3 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच।
So in the question paper, how many total questions are there? Total questions are 33, and out of those 33, 16 plus 9 plus 5 and plus 3. So 16 questions in section A, 9 questions in section B, 5 questions in section C, 3 questions in section D, and total questions are 33. Maximum marks are 70. Okay, so now let us discuss about the choices. So the choices are given in one question of 1 mark. क्वेश्चन नंबर जो 11 है, जो रीजन और असर्शन था, सो 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क. ओके, और जो क्वेश्चन नंबर 16 था वहाँ पर भी जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उनमें भी ये कह रखा था कि अगर 5 ऑप्शन दे रखे हैं तो एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन आप उसमें से कर सकते हो कोई भी, तो उसमें भी थोड़ी सी चॉइस आपको मिलेगी. तो 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क और एक आपका केस बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको छोटी सी चॉइस मिलेगी. आफ्टर दैट जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इन सेक्शन बी, there are the choices in 2 questions of 2 marks. 9 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी में, जिसमें से 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलेगी. सेक्शन सी में, ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. सेक्शन सी में जो चॉइस मिलेगी 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस मिलेगी. सेक्शन डी, यहाँ पर ऑल द 3 क्वेश्चंस, क्योंकि सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन हैं? 3 क्वेश्चंस हैं, तो ऑल द 3 क्वेश्चंस choice is there. So how many choices? 3 plus 1 4 plus 2 6 7 एंड थोड़ा सा इसमें एक और थोड़ी सी छोटी सी चॉइस मिली है, तो 7 प्लस हाफ आप बोल सकते हो, 7 एंड हाफ थोड़ी सी चॉइस उसमें आपको सेक्शन ए में भी मिली है. सो दैट इज़ द सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 12th biology, and these are the changes. Now the pattern of the question paper is same in all the subject. Last year in all the subject the pattern is same, but that is different in biology. But now in all the subject this pattern is same. Thank you.